Good morning, students. Today we are going to start the 11th chapter, that is articles. Okay, so let us start the chapter. Okay, it is on page number 62. We'll know the article, its definition, definite and indefinite articles, and their uses also. Okay, so first of all, look at this. One task is there. Tick right the sentences where A or N has been used correctly and cross the ones where they have been used incorrectly. So let us see the uses of A or N. First one is she has a dog. What do you think? This is correct or not? She has a dog. A dog. This is an good place. An good place. She seems to be a nice person. A nice person. Please pass me a pen. A pen. I saw a elephant this morning. I always wanted to be a teacher. So she is a dog. A dog. So A, E, I, O, U. Where you find these vowels or the sound of the vowels, then you can use N. Okay, and with the consonants we write A. So D is not a vowel, it's a consonant, so A is correct. A dog is correct. But in the second sentence, N good. G is not a vowel, it's a consonant. The sound of G is also not a sound of vowel, it's a sound of consonant. That is why N is wrong here. Okay, N is written wrongly. So A good place will be correct. N good is wrong. In the third sentence, A nice. N is an N sign, nice. N is a consonant, so A nice is correct. In the fourth sentence, A pen, it's also correct, pen. Okay, here A elephant, this is wrong. It should be N elephant because E is a vowel, right? So before a vowel we cannot write A, we should write N. Okay, in the fifth sentence, A teacher, here teacher, T is a in the sixth, sorry, it is the sixth sentence, A teacher. A teacher, T is a consonant, so E is correct here. Okay, A teacher. Now look, the words A, N and D are called articles. So what is an article? A, N and D, these three words are called articles. Okay, they are used to point out on people or things. So A, N, D, these three are articles and they are used to point out at people or thing. Okay, like it tells about it helps us to point out the people or on people or things. Articles can be classified into two categories. There can be two kinds of articles: definite article and indefinite article. Okay, so let us know what are they: definite and indefinite. A and N are called definite articles. So these articles are used for pointing out, like pointing out on things or people. So it may be used for number also. Okay, it may denote numbers also. So and the for which people or which person we are talking or which thing we are talking, this can be understood by these articles. Okay, this is only the use of articles. It helps us to point out about whom we are talking, about which thing we are talking. Okay, now A and N are called indefinite articles, as they are used when we are not talking of any person or thing in particular. So definite and indefinite articles are there. Okay, so A and N are called indefinite articles. A, N are three articles are there, no, A, N, D, and among them A and N, these two are called indefinite because they are used to denote or point out on people or a thing in not in particular. Like when we are not sure about something or someone, like when we are not talking particularly about a person or a thing. Okay, जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान या चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, तब हम लोग A और N का इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए इन A और N को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली किसी को नहीं बोलते हैं ना, इसीलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है इन दोनों को. डेफिनेटली या पर्टिकुलरली किसी चीज या किसी इंसान के बारे में ये नहीं बताते. ओके, लुक एट दिस वर्ड्स. ए चेयर मतलब एक चेयर. कौन सा चेयर? वी डोंट नो.
कोई भी किसी भी एक चेयर के बारे में बताया गया है, तो ये ए क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, ए चेयर, अ टेबल, अ बॉक्स, अ बैग, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। देखो ए जहां पर वावल है, देखो सी एक कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए है, टी कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए, बी कॉन्सोनेंट उसके आगे ए, बी कॉन्सोनेंट उसके आगे ए। यहाँ पर भी अब देखो यहाँ पर क्या है, ए एक वावल है, तो वावल के आगे एन, यू एक वावल है जिसके आगे एन, ए एक वावल है उसके आगे एन, यहाँ पर आई भी एक वावल है उसके आगे एन। ओके, एन इग्लू, एन एंट, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। ओके, नाउ look, we always use a and n before countable nouns in the singular number। तो हम लोग काउंटेबल चीज के आगे ही a और n लिख सकते हैं। ओके, काउंटेबल चीजों के आगे ही a और n लिखा जा सकता है। और कब, जब वो एक चीज के बारे में बताए, सिंगुलर नंबर। ठीक है, काउंटेबल चीज होना चाहिए जैसे बुक, पेन, राइट, और काउंटेबल होना चाहिए और एक होगा तभी हम लोग कहेंगे। जैसे कि ए चेयर मतलब एक चेयर है ना, ये सारे चेयर, एप्पल, टेबल, अम्ब्रेला, बॉक्स एंड बैग, इग्लू, ये सारे क्या हैं, काउंटेबल चीजें हैं, राइट, काउंटेबल नाउन्स। एंड वो सब एक होंगे, एक एक की बात होगी तभी हम लोग ए और एन लिखेंगे। ए चेयर मतलब एक चेयर, एन एप्पल मतलब एक एप्पल, राइट, एन अम्ब्रेला मतलब एक छाता, एक अम्ब्रेला। नाउ हाउएवर वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। वी डू नॉट से ए टी, एन इंक और ए शुगर। ठीक है, हम ए टी, टी, इंक, शुगर, ये तो अनकाउंटेबल चीजें हैं ना, तो इनके आगे हम ए, एन ये सब नहीं लिख सकते, बिकॉज दे कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, ये गिने नहीं जा सकते, इसीलिए वी कैन से ए कप ऑफ टी, a bottle of ink, a packet of sugar, etc. लेकिन at the same time we can say that a cup of tea, a bottle of ink is correct. A tea, a ink, an ink cannot be written. Okay, a cup of tea, a bottle of ink, a packet, right? It's correct. When you say a cup, then you are speaking about the cup. Okay, that is why you can say a cup. A bottle means एक bottle. So a is for bottle, not for ink. Okay, a packet, a not a sugar, it's a packet. We are talking about packet of sugar. A packet of sugar means एक packet. So packet is countable, sugar is not countable, it is uncountable, but packet is countable. No, that is why we can say a packet of sugar, etc. Okay, now the use of a or n depends upon the beginning sound of the word before which it's placed. So I told you, no, in the last page, that a and n, the use of a and n, a और n कहाँ पे लिखे जाएंगे वो कैसे डिपेंड करेगा, देखना पड़ेगा कि इसके बाद वाला वर्ड जो है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है। ओके, उसका साउंड कैसा है, बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इज प्लेस्ड। जिस वर्ड के आगे ए और एन को लिखना है उस वर्ड का पहला लेटर जो है उसको देखना पड़ता है हमको, है ना। जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं, इसके आगे वाले लेटर, इसके पहले वाले लेटर को देखना है। टी जो है कॉन्सोनेंट है, उसी को देख के हमें ए लिखना पड़ा है। लेकिन नीचे वाले वर्ड में अम्ब्रेला, यहाँ पर पहला वर्ड एक वावल है, ठीक है, इसीलिए एन बिठाया गया है। तो ये पहले वाले, इसके बाद वाले, मतलब जहाँ पे यूज हो रहा है उसके बाद वाला जो वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ए और एन क्या बैठेगा वहां पर। ठीक है, लुक एट द टेबल बिलो, यहाँ पर अच्छा सा नियम बताया गया है किसके साथ क्या होगा। देखो ए, ठीक है, इसका फंक्शन कहाँ पर यूज होता है। देखो ए पहला फंक्शन है, यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कोई भी ऐसा काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल चीज होना चाहिए और वो सिंगुलर, मतलब एक चीज के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, और उसका उस साउंड, मतलब उस वर्ड का पहला वाला लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, लेटर नहीं, एकदम उसका जो वर्ड होगा उसका साउंड पहला वाला कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, ए टॉय, तो देखो टॉय, यहाँ पर एक चीज के बारे में बात हो रहा है। टॉय काउंटेबल भी है ना, और टॉय सिंगुलर फॉर्म में भी है ना। टॉयज थोड़ी लिखा है, टॉय लिखा है, एक टॉय, तो इसीलिए ए लिखा हुआ है, क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट है। टॉय, टॉय, ट साउंड आ रहा है, ट एक वावल नहीं कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए टॉय। उसी तरह ए पेन, ए कैट,
ए बाइक, यहाँ पर सब काउंटेबल चीजें हैं और सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, प्लूरल नहीं है, दो चीजों के बारे में नहीं बताया गया है, एक ही एक चीज के बारे में बताया गया है। और सबके जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ए ई आई ओ यू ऐसे साउंड नहीं है, वावल वाले साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट वाले साउंड है, इसीलिए यहाँ पर सबके साथ ए यूज हुआ है। सेकंड है फंक्शन, देखो, यूज्ड बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विथ वावल्स बट इज प्रोनाउंस्ड विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखो, कभी कभी हम वावल के सामने भी ए को यूज कर सकते हैं जब उसका साउंड कॉन्सोनेंट वाला आएगा, ठीक है, बट इज प्रोनाउंस्ड विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तब वो स्पेलिंग का साउंड कॉन्सोनेंट जैसा आना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ए यूनिवर्स, ठीक है, जब ए यूनिवर्स, तो यूनिवर्स देखो यू का साउंड यू जैसा ही आ रहा है, इसीलिए यू का साथ अ जैसा आता है जब अम्ब्रेला, ठीक है, अनवांटेड, तब यू का साथ यू का साउंड अ जैसा आता है, तब हम लोग वावल लिखते हैं, ठीक है, वावल मानते हैं उसको, I mean, उसके आगे एन लिखते हैं। लेकिन यू का साउंड अगर यू जैसा ही आएगा, यूनिवर्सिटी, तब हम लोग ए लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए वन आइड मॉन्स्टर, ए वन वे स्ट्रीट, ठीक है, यूज बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विथ ए वावल बट इज प्रोनाउंस्ड विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एन, एन इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ ए वावल साउंड, ठीक है, जब हम लोग काउंटेबल चीजों के बारे में बात करें और वो सिंगुलर मतलब एक चीज होना चाहिए और उसका साउंड वावल से स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि एन एग, एन एप्रिकॉट, एन ऑक्स, तो यहाँ पर सिंगल चीजों के बारे में बात हो रही है और सारे काउंटेबल भी हैं और सिंगल, दो के बारे में नहीं, सिंगल चीजों के बारे में बात हो रही है। और देखो सबके आगे ई, ए ई आई ओ यू, तो ई एक वावल है, उसके आगे एन होगा, ए एक वावल है, उसके आगे भी एन, ओ एक वावल है, इसके आगे एन, ओके। नेक्स्ट इज यूज्ड बिफोर एब्रिविएशंस इफ द कॉन्सोनेंट बिगिंस विथ ए वावल साउंड। तो देखो कभी कभी कॉन्सोनेंट के सामने भी हम लोग एन लिख सकते हैं, ओके, कब, जब हम लोग एब्रिविएशन की बात करें, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, राइट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स, तो used before abbreviations if the consonant begins with, वहां पर अगर कॉन्सोनेंट भी हुआ लेकिन उसका साउंड अगर वावल जैसा आया तब हम एन लिख सकते हैं उसके सामने। लुक एट दैट, एन एम ए, एन एम पी, सो एम इज नॉट ए वावल, इट्स ए कॉन्सोनेंट, देन ऑल्सो वी हैव रिटन एन, वाई, बिकॉज एम ए, द स्टार्टिंग ऑफ एम स्टार्ट्स विथ ए, एम, राइट, it starts with M, A sounds comes at the first when you pronounce MA, okay, that is why A comes first, so the sound of A comes first, right, that is why N is used with MA, right, A comes first, that is why N is used with MA because A sound is a vowel sound. Next NMP, M, right, same like that, so A sound comes first, A is a vowel, that is why N is used with MP. Next one is used before words beginning with the letter H which is not pronounced. Okay, कभी कभी ऐसा स्पेलिंग्स भी होते हैं ना जहाँ पर H साइलेंट, H लिखा होता है पहले लेकिन वो साइलेंट होता है पहला वाला लेटर, राइट, सो जो H से स्टार्ट होने वाले कुछ स्पेलिंग्स हैं जो जहाँ पर H हम लोग उच्चारण ही नहीं करते, ओके, वी डोंट प्रोनाउंस H is silent. In these words also, with these words also, N is used. Like for example, HOUR, HONEST, honest. Okay, like that, R, honest. So we write H, but we don't pronounce H. Okay, NR, an honest person. So we don't pronounce H here. We don't say Howard or honest. No, R, honest. Okay, so O, the sound of O comes first, R, A comes first, right, so A is a vowel sound, so N is used. Honest, O comes first, that is why O is a vowel sound and that is why N is used with honest. Next, now read about some more cases where we use the article A or N. Okay, there are some more cases where we use A or N. Look at these sentences. A bull has horns. An elephant is an intelligent animal. Okay.
an elephant, a bull. Here a bull represents the entire class of bulls. Okay, so here a bull doesn't mean that we are talking about one particular bull. No, a bull here, a bull has horns, means every bull, all the bulls have their horns, right? So a bull represents the entire class of bulls. Thus we can say, or we can use a or an before a singular countable noun that is used to represent a class of things. Means we can use a or n with the letter or the the word or the name of a person or thing to डिनोट अबाउट द क्लास, आई मीन देयर क्लास, एक जाति के बारे में बताने के लिए. ओके, तो ए बुल हैज हॉर्न्स मीन्स हर मतलब बुल के पास सिंग, उनके सिंग होते ही हैं, राइट? बैलों के सिंग होते हैं, तो एक बैल के थोड़ी, पूरे सारे बैलों के सिंग होते हैं, है ना? और वैसे ही तो अगर किसी जाति के बारे में बताया जाए तो हम अगर सिंगुलर चीज के बारे में बता रहे हैं तो ए यूज कर सकते हैं. ओके, काउंटेबल चीज होना चाहिए वो, राइट? सेम विद द सेकंड सेंटेंस, एन एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. तो यहाँ पर भी एन एलिफेंट किसी एक एलिफेंट के लिए नहीं, पूरे एलिफेंट जाति के लिए यूज हुआ है. ओके, एक एलिफेंट इंटेलिजेंट एनिमल होता है, मतलब सिर्फ एक ही एलिफेंट इंटेलिजेंट नहीं, सारा मतलब सारे हाथी, जो जितने भी हाथी हैं सब हाथी एलिफेंट आई मीन इंटेलिजेंट होते हैं. ओके, Okay, next. The indefinite article is used when a singular countable noun follows the words what and such. मतलब किसी सेंटेंस में what और such के बाद what these words हैं, what लिखा होगा, such लिखा होगा, इनके ऊपर अगर सिंगुलर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा होगा, ठीक है, किसी एक चीज के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा होगा, तब उसके साथ भी व्हाट और सच के साथ भी ए लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो तो कंफ्यूज नहीं होगे. जैसे कि व्हाट अ ग्रेट ड्रेस, तो ए ग्रेट ड्रेस एक ड्रेस के बारे में बात हो रहा है ना, और ड्रेस तो काउंटेबल है, तो ये हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो व्हाट के बाद हम ए लिख सकते हैं. ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने अगर व्हाट लिखा हो तो व्हाट के साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए लिख सकते हैं. व्हाट अ ग्रेट ड्रेस. नेक्स्ट, ही इज सच अ नाइस मैन. लुक, नाइस मैन, एक इंसान के बारे में बात हो रहा है ना, एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो सच के बाद हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए लिख सकते हैं. ठीक है, सच अ नाइस मैन, तो सच के बाद ए यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज टू इंडिकेट वन. हम लोग अगर एक चीज के बारे में बात करें तो जहां पर हम वन लिखना चाहते हैं वहां पर ए लिख देते हैं. ठीक है, तो ए और वन एक ही है ना. नॉट ए वर्ड वॉज अटर्ड, तो ए वर्ड मतलब एक भी वर्ड उसने नहीं बोला, एक भी वर्ड. ठीक है, नॉट अ वर्ड वॉज अटर्ड, तो नॉट अ सिंगल वर्ड, हाँ, एक भी वर्ड नहीं, तो इसीलिए ए एक के जगह पर यूज होता है, एक के बताने में, एक चीज के बारे में. द इंडेफिनिट आर्टिकल इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ प्रोफेशन. किसी प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो तब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन लिख सकते हैं. जैसे कि ही इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक प्रोफेशन है, राइट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, राइट, सो एन आर्टिस्ट. शी इज अ लॉयर, सो लॉयर इज द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, राइट, सो ए लॉयर वी कैन राइट द इंडेफिनिट आर्टिकल ए. ओके, प्रोफेशन के आगे भी हम ए एन लिख सकते हैं. Now words like dozen, quarter, 100, 1000, few, little and a lot are preceded by a. मतलब इन सारे words के सामने भी a लिखा जा सकता है. For example, can you give me a little sugar? A little मतलब थोड़ा सा sugar, है ना, ये uncountable noun है sugar, लेकिन little लगाने से उसके साथ हम लोग a लगा सकते हैं. फिर he bought a dozen eggs, a dozen. It is a quarter of kilometer to the station, a quarter of kilometer. Okay, a lot of people, lot के साथ भी a लगा सकते हैं. इन सारे वर्ड के साथ a lot of people appreciated the program, इन सारे वर्ड के साथ हम a लगा सकते हैं, indefinite article लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं इनके साथ. नेक्स्ट, we use little with quantity and few with number. तो कभी कभी हम little और few में कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो
कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लिटिल और फ्यू को थोड़ा थोड़ा जब बताते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है, तब उसके बारे में लिटिल और फ्यू लिख सकते हैं। तो लिटिल और फ्यू, लिटिल क्वांटिटी के साथ लिखते हैं और फ्यू विथ नंबर, ठीक है, मतलब लिटिल क्वांटिटी बताता है, नंबर नहीं बताता, फ्यू नंबर बताता है, ठीक है, मतलब चीजों को अगर तुम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिटिल हम अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज कर सकते हैं और फ्यू काउंटेबल, नंबर तो काउंटेबल चीजों के होते हैं ना, तो ना काउंटेबल चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। ए लिटिल मतलब सम, ठीक है, ए लिटिल मतलब सम कुछ, और लिटिल मतलब हार्डली एनी, मतलब ये नेगेटिव सेंस में होता है लिटिल, ठीक है, मतलब मुश्किल से, मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा, मुश्किल से, हार्डली एनी, ठीक है, और ए लिटिल मतलब कुछ, ठीक है, सम कुछ है, लेकिन ए लिटिल मतलब कुछ तो है, लेकिन लिटिल का मतलब मुश्किल से कुछ भी है या नहीं पता नहीं, ठीक है, मुश्किल से कुछ मिलेगा ऐसा। ए फ्यू मतलब कुछ, सिमिलरली ए फ्यू मतलब सम, और फ्यू मतलब हार्डली एनी, फ्यू मतलब मुश्किल से कुछ मिल गया तो, ठीक है, लेकिन ए फ्यू मतलब सम है, कुछ है। आई हैव अ फ्यू थिंग्स, तो मतलब कुछ थिंग्स है मेरे पास, लेकिन आई हैव अ फ्यू थिंग्स मीन्स, आई हैव फ्यू थिंग्स मीन्स फ्यू मतलब शायद ही कोई चीज मेरे पास है ऐसा, ठीक है, और ए लिटिल मतलब सम, जैसे सेम आई हैव ए लिटिल मिल्क, मतलब मेरे पास कुछ मिल्क है, लेकिन थोड़ा सा मिल्क है, लेकिन अगर बोलेंगे कि आई हैव लिटिल मिल्क, देन मीन्स मेरे पास शायद ही मिल्क होगा, ठीक है, ऐसा मतलब चांस कम, एकदम चांस कम, उसके तब हम लोग लिटिल और फ्यू यूज करते हैं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, देयर इज अ लिटिल टी लेफ्ट इन द पॉट, ठीक है, हियर ए लिटिल इम्प्लाइज सम, तो देयर इज अ लिटिल टी लेफ्ट इन द पॉट, पॉट में थोड़ा सा टी बाकी है, राइट, तो यहाँ पर ए लिटिल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा चीज, थोड़ा सा टी बाकी है पॉट में। फिर देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज कमिंग इन द रेन, तो बारिश में उसके आने की मतलब कोई आशा नहीं है, मतलब लिटिल मतलब आशा, मतलब हार्डली कोई आशा है, देखो हेयर लिटिल मीन्स हार्डली एनी, ठीक है, मतलब उसके आने की शायद ही कोई उम्मीद है, ठीक है, मतलब एकदम उम्मीद नहीं है, थोड़ी सी उम्मीद है, एकदम जैसे कि ना के बराबर। ए फ्यू बॉयज हैव डन वेरी वेल इन द एग्जाम्स, हियर ए फ्यू सजेस्ट सम, तो लगता है ए फ्यू बॉयज हैव डन वेरी वेल इन द एग्जाम, मतलब कुछ बॉयज ने एग्जाम में अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई फ्यू वुमेन बट मेनी मैन केम, तो मीटिंग में कुछ ही, शायद ही कोई महिलाएं आई होंगी, और लेकिन बहुत सारे आदमी आए थे। हेयर फ्यू मीन्स हार्डली एनी, मतलब फ्यू, यहाँ पर फ्यू का मतलब क्या है कि हार्डली एनी, मुश्किल से कोई महिलाएं आई होंगी, मतलब इतनी कम थी कि मतलब उसका श्योर भी नहीं है कि कितनी आई थी, ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। ए लिटिल मतलब सम और लिटिल मतलब हार्डली एनी, ए फ्यू मतलब सम, फ्यू मतलब हार्डली एनी, तो ए लिटिल क्वांटिटी बताता है और ए लिटिल नंबर बताता है, ठीक है, ए लिटिल आपको अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज कर सकते हैं और फ्यू काउंटेबल चीजों के साथ, ओके, तो मतलब ये तो मतलब हुआ ना, लिटिल क्वांटिटी बताता है और फ्यू नंबर बताता है, ओके, तो आज हमने जो भी सीखा आप लोग रिवाइज करें, और फॉर टुडे द क्लास इज ओवर हियर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, थैंक यू।